नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग इन गुड़गांव। I have done two previous videos on the subject and I have been receiving lot of queries on the on this subject. I have chosen 7 most popular questions on the topic and I'll be answering all of them in this one. If you have not subscribed to the channel, it's a request that you may subscribe, and if you find it useful, you can share it with others as well. Now, on this topic, who all can buy? This is the first question. The answer to it is anybody can buy. The applicant Aadhaar number is linked to the application, and the government ruling is that you can buy only one per family. So if you are husband and wife, it is one family. Parents are considered another family. Sibling is another family. And your children above 18 years of age are another family. So practically you can buy 2-3 of them, but in the name of parents, yourself, or adult kids. So this is as far as eligibility condition is there. Your PAN and Aadhaar will be linked. It's a subsidy which is there by the government. The price is capped at 4,000 rupees per square feet carpet area. So the price is same for all the projects. So this is the first question. Second question is what is the payment plan and what are the price for these projects. Normally the price varies from 22 lakhs to about 24 to 26 lakhs depending on whether it is 3 BHK, 2 BHK. The rate is 4,000 rupees per square feet. So it's a 600 square feet carpet area. The price will be 24 lakh. Balcony, the cost is 500 rupees per square feet. So if 100 square feet balcony is there, then it becomes 50,000. So if a carpet area you are getting of 600 square feet and 100 square feet balcony, the price will be 24 lakh plus 50,000. The GST on this is extremely less. It has been reduced by the government to just 1%. And the registration cost for the ladies is also less. So this is the pricing. The payment plan is that on application you give 5% of the total amount. Now the application, it goes into the draw. In the draw, the chances are high that you will get, because it is capped at one per family. So बहुत लोगों का निकल चुका है. So chances high रहते हैं normally. सो 5% आपने एप्लीकेशन के साथ दिया. अलॉटमेंट पे आपको 20% देना है जब ड्रॉ में निकल गया. दैट इज विद इन 21 days ऑफ द सक्सेसफुल ड्रॉ एंड दैट लेटर बीन सेंड टू यू. उसके बाद जो 75% बच जाता है उसको आपको 6 इंस्टॉलमेंट्स में 12.5% ईच देना है. तो तकरीबन अगर 24 लाख का फ्लैट है आपका, जो नॉर्मली इतने रेंज में होता है, तो 1.2 लाख आपने एप्लीकेशन के साथ दिया, आपका निकल गया, 4.8 लाख रुपीस दिया. फिर आपने 6 इंस्टॉलमेंट्स दी 12.5 की, जो कि तकरीबन आपकी 2.88 लाख की होती है. तो तकरीबन आप ये सोच सकते हैं कि आपका पीएफ सब्सक्रिप्शन टाइप सिस्टम है, जहां आप 40, 50, 60,000 पीएफ कटा रहे हैं, उसको अगर आप रिड्यूस कर दें तो प्रैक्टिकली आप एक अफोर्डेबल हाउसिंग खरीद सकते हैं बिना ज़्यादा लोन के. अगर आपको लोन चाहिए तो लोन इस पे 6.7% पे भी मिल जाता है. बच्चों के नाम पे लेंगे जो फैमिली में मेंबर नहीं कमा रहा है या जिसकी वो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, तो पीएम आवास योजना में आपको 2.67 लाख की सब्सिडी भी मिलती है, पर उसकी कंडीशंस हैं. सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन इज कि रेडी टू मूव इन लें, कौन सा लें. अब रेडी टू मूव इन का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, क्योंकि जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो आप तब अप्लाई करते हैं. जो रेडी टू मूव इन 2-3 ही प्रोजेक्ट आए हैं यहाँ पे. तुलिप लेमन आया है, आपका आर ऑफ आलियाज आया है, सिग्नेचर के 2-3 प्रोजेक्ट्स का पोजीशन मिला है, क्योंकि पोजीशन अभी ही मिलने शुरू हुए हैं 1 साल में. जो बाकी मोस्टली अंडर कंस्ट्रक्शन ही है. तो उसमें आप 1 साल तक पोजीशन के बाद आप बेच भी नहीं सकते इसको, ये भी रूल है. तो अभी मार्केट में तो माल बिकने के लिए आया ही है, बट उसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा है. तो वो मैंने पहले भी वीडियोस कर रखे हैं इस पर. पिछला वीडियो मेरा देखिए, इसमें मैंने 2 वीडियोस किए हैं. इस वीडियो के एंड में मैं वो दोनों वीडियोस का लिंक दूंगा. एक वीडियो था मेरा कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी और रेंटल लीड का, जिसमें मैंने बेसिक समझाया आपको कि भी
कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हैं। सेकंड में मैंने उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में पूरा डिटेल में बताया है, तो उसमें वो दोनों वीडियोस देखिएगा, उससे आपका बेस बनेगा और फिर आप ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियोस बेसिकली उनके लिए है जिनने वो 2 वीडियोस देख लिए हैं, तो क्योंकि डायरेक्ट आप क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, पहले आपका एक बेस क्लियर होना चाहिए कि उसमें मैंने कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर करके बताया। तो रेडी टू मूव इन में प्रीमियम होगा और वो मार्केट में आपको 40 लाख रुपीस 42 लाख रुपीस के मिलेंगे। तो मेरे को नहीं लगा, अच्छा वो वाले प्रोजेक्ट थोड़े पुराने हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन भी माइवन नहीं मिलेगी कईयों में। तो एडवाइस ये है कि नए वाले में डालिए, रेट तो सेम ही है, क्योंकि जो नए बिल्डर्स अब अफोर्डेबल में आ रहे हैं वो एमिनिटीज लेके आ रहे हैं। जो प्रोजेक्ट आपके लॉन्च हुए थे 2014 15 16 में हुए थे, उनमें बहुत ही बुनियादी थे तो वो बुनियादी ये से बेटर हैं ये वाले, कईयों में स्विमिंग पूल तक मिल रहा है, तो दैट इज़ वेरी नाइस थिंग। तो ये उसका आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है जी, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। इनकी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो अभी लॉन्च हो रहे हैं उनकी माइवन कंस्ट्रक्शन है एट पार विद व्हाट बिग बिल्डर्स आर गिविंग। तो ये बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है। सारे प्रोमिनेंट अफोर्डेबल हाउसिंग वाले अब माइवन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, क्योंकि पुराने वाले तो लाल ईंट वाले थे, सो दीज वन विल बी बेटर, सो दे आर एट पार विद दैट। तो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वो हो गया। पांचवा सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट कैन आई एक्सपेक्ट। तो ये मैं बोलूँगा, ये सवाल में थोड़ा गड़बड़ ये है कि भाई 22 23 24 लाख की चीज़ ली आपने, 3 से 4 साल में पोजीशन हुआ, 1 साल बाद आप बेच सकते हैं, तो 5 साल में मेरे हिसाब से वो डबल हो जानी चाहिए। डबल नहीं होती तो 80-90% एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। पर अगर आपकी 44-45 लाख की हो रही है 2024-25 में, अगर आप अभी लेंगे, तो उसमें 20 लाख में तो आप टाइकून तो बनने नहीं वाले। आप कहीं स्विट्जरलैंड तो घूम के आएंगे नहीं 18 लाख के प्रॉफिट में, एक्सयूवी 500 तो खरीदने का फायदा नहीं, उसको आप कैश का यूज़ कीजिए। आपका एक फुट होल्ड हो गया जी गुड़गांव में, एनसीआर में, तो आपको एक रहने लायक कुछ हो गया, आपका बच्चा रह सकता है, रेंटल यील्ड हो सकता है, वो आपको रेंट्स मिल सकते हैं, तो उसको बेचने के लिए मत खरीदिए, इसको कैश काउ की तरह खरीदिए कि इसका रेंट हमेशा आपको मिलता रहेगा और आपको एक अच्छी जगह प्रॉपर्टी मिल गई। क्योंकि आपने मान लो 45 लाख की बेच भी दी 4 साल बाद, तो उसमें कहाँ क्या खरीदोगे, और फिर से वो ऐसे प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करेगी नहीं कि हाँ 24 की 45 होगी, फिर 45 से कभी 80, इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी। पोजीशन में ही मेन होगा, उसके बाद रेंटल यील्ड का ही फायदा होगा आपको। तकरीबन वो मैंने समझा रखा है पिछले वीडियोस में, तो उन वीडियोस को देखिएगा। और इसमें मैंने एक सीरीज लिखी है आर्टिकल्स की, जिसमें मैंने ये इनको कंपेयर किया है म्यूचुअल फंड्स के साथ, एफडीज के साथ। उसमें मेरे आर्टिकल्स हैं, जिनको उस सीरीज़ में इंटरेस्ट है मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे को, मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं जो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा एंड मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, उस पर मुझसे जुड़िए और उस सीरीज़ को आप लीजिए। उसमें 20 आर्टिकल लिखे हैं मैंने रियल एस्टेट पे। उसमें मैंने इस अफोर्डेबल हाउसिंग में एग्जाम्पल्स और डेटा के साथ दिया है, क्योंकि यहाँ मैं अगर वो शेयर करने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और बिना ग्राफिक्स के समझ भी नहीं आएगा वो कि क्या कैलकुलेशंस है। पर मैंने वो पीडीएफ में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बड़े अच्छे से करके दे रखे हैं, उनको आप ज़रूर पढ़िए वो सीरीज़, उससे आपकी क्लैरिटी बहुत आएगी रिटर्न्स को देख के कि भाई इसमें क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आखिरी क्वेश्चन ये है कि लोग पूछते हैं भी अब बताओ फिर कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। तो अभी 2 या 3 प्रोजेक्ट्स हैं, एक निकला हुआ है और 23 लाख का है, 2 BHK है, फ्रेश प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप मुझसे जुड़िएगा। वो प्रोजेक्ट आपका सेक्टर 92 में है और 2 प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ कैंसलेशन यूनिट्स आ रखी हैं, तो मैं उनके नाम बताऊंगा, बाकी जैसे लेना है आप उससे आप कनेक्ट करिएगा। तो ये इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, 85 to 90% प्ले आउट कर चुका है और थोड़ा ही बचा है, बिकॉज गवर्नमेंट ने मैंडेट लगा रखा है कि एक पर्टिकुलर नंबर ही पर्टिकुलर सेक्टर में आ सकता है, उससे ज़्यादा ये अफोर्डेबल हाउसिंग आएंगे ही नहीं। 2 से 3 प्रोजेक्ट, 5 एकड़ का एक प्रोजेक्ट एंड 10 to 15 एकर्स का कैप है पर सेक्टर। तो ऐसा नहीं कि इनकी अनलिमिटेड सप्लाई होने वाली है, इनकी लिमिटेड सप्लाई है। प्रोजेक्ट्स अलग अलग स्टेजेस में हैं, 2015 में लॉन्च हुए थे, 16 में, 17, 18, 19 में हैं और अब प्रोजेक्ट्स थोड़े कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सेक्टर्स जितने भी अपने 58 सेक्टर्स से 115 सेक्टर्स हैं गुड़गांव में, उसमें कुछ यूटिलिटी सेक्टर्स हैं, मोस्टली सेक्टर्स में 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट आ चुके हैं एंड ज़मीन बची नहीं है। 80 to 90% स्टोरी प्ले आउट हो चुकी है।
अभी तक मार्केट में वर्ड ऑफ माउथ पे ही जाता है, इसमें मार्केटिंग कॉस्ट नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा आपको इनकी एड्स नहीं दिखेंगी। इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, इस एरिया में नहीं हैं, जिनको पता नहीं है कॉन्सेप्ट का, वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। पूरे इंडिया में इससे सस्ता माइवन कंस्ट्रक्शन का इस लेवल का कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरे इंडिया में बोल रहा हूँ। एंड चैलेंज ये है कि अगर मैं आपको बोलूँ, आप अपने गांव में 2 रूम बनाइए, 2 बाथरूम बनाइए, एक किचन बनाइए, 2 बालकनी बनाइए और एक ड्राइंग डाइनिंग बनाइए और 23 लाख में बना दीजिए, तो आप नहीं बना सकते। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ही नहीं बना सकते। लैंड की कॉस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा मैं। तो ये आपको शेयर मार्केट की जो टर्म है बुक वैल्यू, उससे कम में मिल रहा है। तो ये नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट्स हैं, कोई सी भी ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। 2 ही तरह की हैं, एक गुड है, एक बेटर है। तो मतलब कोई भी खराब नहीं है, जो समझ में आ जाए वो ले लीजिए, एक से ज़्यादा वैसे भी नहीं ले सकते। अब आपकी कोई क्वेरीज आएंगी, आप मेरे को फिर कनेक्ट कर सकते हैं। और वो आर्टिकल सीरीज़ का जो मैंने जिक्र किया है, मेरे हिसाब से वीकेंड आ रहा है, वो मस्ट रीड है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, एंड देन यू कैन आस्क फॉर दैट PDF on which I have written in great details. Thank you very much.